Next grade 6B. Welcome and congratulations on the wonderful performance. I also call upon Dr. Divya Joshi, Jipmer, rank 16, PJ November 15, rank 40. Congratulations to you on your wonderful performance. I also call upon Dr. Deepthi. Thank you very much, ma'am. Yes, sir. Hello. Very good morning, everybody. Good morning. कैसा लग रहा है? अच्छा. मेरा ना आज बोल रहा कि हम आज संडे का दिन था आप लोग थे and they have been kind enough to come here. मुझे लगा कि इंटरेक्शन कर लेते हैं and I like to add on to this कि these guys are husband and wife. तो मैं सोच रहा हूँ कि you have to know from them कि कैसे इन्होंने ऐसा पढ़ा कि they are rank 1 and rank 16 in the same exam. They are ये बैंगलोर ब्रांच के हमारे रेगुलर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं. They are absolutely stunning in everything they have done. ये कॉलेज में फेस्टिवल में भी पार्ट लेते थे, पिक्चर भी देखते थे, टाइम पास भी. They were doing everything and they are topping every exam they are giving. They have good ranks. और उनका ये मानना है कि कुछ चीजें इन्होंने पढ़ने में या कुछ पढ़ने की टेक्निक इनकी ऐसी है which yields more result. तो मुझे लगा क्यों ना आप लोग के साथ एक इंटरेक्ट करें so that आपको भी एक बात जो फीलिंग जो है ज़्यादा मिले कि नॉर्मल लोग रैंक लाते हैं. उसमें सुना आपने बात कभी ऐसा नहीं लगता जो रैंक ला रहे हैं कुछ अजीब सी बात होगी मतलब हम तो नहीं कर सकते. This is normal to get a rank. You can actually do normal things in life yet get a good rank. So let us understand क्या किया है ना. So first I hand over the mic to Dr. Rohan and we want to hear from him. He is ranked 10 in PJ Chandigarh and rank 1 in Jipmer this year and बाकी एग्जाम से भी एम्स ऑल इंडिया और AMP उसे ना देने का फैसला किया. Which is fair. In rank 1 के बाद he has to do something in Jipmer. तो वो सोचा है कि मैं नहीं करना चाहता आगे ऑल इंडिया का एग्जाम नहीं तो वहाँ पे भी ऐसा ही रैंक लाना. Let us hear from him and see कि वो क्या किया. Well, I'll give you a chance to ask questions. आप भी पूछ सकते हैं कि क्या जानना चाहते हैं. So Rohan, we want to know what was your strategy initially and in the initial phase and in the last phase, and how that worked. Good afternoon, everybody. I had joined the regular course of DAMS in March this year, and I have been studying. Not much during my MBBS time and for PG entrance time. And during internship, our internship was pretty hectic. So we studied well, but not enough to get a PGC. I got a rank of around 3,000 in my first All India. But then I did not take up. I thought my seniors advised me to go ahead with some coaching classes and get a better rank. So I joined TAMS and it turned out to be extremely helpful for me. And I have always been a hard-working student, more than being intelligent. I think the 40% intelligence and 60% hard work is the thing required for these exams. And later on, dance gave me the right guidance, the right direction in which I had to move ahead. And I had the right support from Divya and one of my friends. So 3 of us studied together throughout MBBS also and during my PG coaching also till the exams got over, and we all ended up doing well. She got 16 and one of my friends got Moral of the story is studying together is a good idea. Yeah, studying together was a very good idea for us, provided the group is synergistic. The end result. Provided the group is synergistic. Yeah. And let us ask from Divya, what is her idea on how did she start studying? What was your background when you joined us, and how did you proceed with the studies? What benefited you most? As he said, we are from Kim's Hubli, and मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को you might not even have heard of the place Hubli. So we are from a very normal college, and we didn't have the right guidance from our seniors because this concept of going to a coaching class not में तो बहुत सालों से है, but it's not that prevalent down south. So when one of our seniors did well, he came and told us that it's possible. He got rank 16 in PGI. So we both started studying, MCQs since 3rd year, but not like hardcore studies, like thoda along with our routine studies.
And after my internship, even I gave it my all India internship, I got 5,000. So we both decided to join DAMS, and I think that was the best decision that we took because the classes are so structured. And what we both and our third friend did was that we like suppose our first class was physio. So we made such a timetable. He would complete physio by Friday, so we would be prepared for the Saturday's test. And we did that initially for every subject. Like we used to do only that subject in that week. And a few subjects where you don't need the entire week to complete it, like medicine is split up into topics. So we used to spend like 3 days for medicine, and the other 2 days we would start our revision from the first class itself. And ऐसे करके we would mark some points which we felt we would forget. So in our second revision, we would read only those points. We would not start from the beginning. So we would read our notes and then those points which we marked from our MCQ books and all. And ऐसे करके we did our second revision. Then third revision, even the further reading वाले mark points we would read. And then that's how we narrowed our कितना पढ़ना है to our future revisions. And then as contrary to what many people say, if we have to study for AIIMS, so we have to study in a separate way, and PGI we have to study in a separate way. We didn't do any of that. We just did our subjects till the end, and in fact only 1 week before AIIMS we started AIIMS volumes, and like 1 week before PGI we started PGI, and same for JIPMER. So I don't think you need a totally separate approach for each and every exam. It's the same thing towards the end, because we have to get the repeats right. We have to get. So you have to do the previous papers, but not from the beginning, only towards the end. So that's what worked for us. मैं क्या करूँगा जस्ट समराइज व्हाट शी सेड. मैं कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं जो हम हमेशा कहते भी हैं और मैं चाहता हूँ आपको बता भी सकें. व्हाट शी सेइंग इज कि अपने पढ़ने को क्लासेस से सिंक्रोनाइज करें. मतलब अगर क्लासेस फिजियोलॉजी की हो रही हैं तो उस हफ्ते में शी स्टडी फिजियोलॉजी. कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि अपना कुछ और कर रहे हैं, क्लासेस में कुछ और चल रहा है तो कुछ गेन नहीं कर पाते. और जब वो टेस्ट आना टाइम्स में, उससे पहले हम अपना वो टॉपिक पूरी तरह खत्म कर लें ताकि हमारा एक सब्जेक्ट खत्म हो एंड वी गेट मोर चांस टू रिवाइज इट. आगे रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाते गए, उसको आखिर में पढ़ लिया. जो पॉइंट्स हमें मुश्किल लगते हैं उसको रेड कलर से इन कलर से मार्क कर लिया, वो आखिरी में दोबारा देखें ताकि याद रहे. बिल्कुल फेयर सिंपल तरीका है रैंक लाने का, लेकिन ज्यादातर लोग उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं क्योंकि बहुत कुछ करना चाहते हैं. तो होता क्या है कि क्लास में कुछ और चल रहा है और कुछ और नहीं, फिर वापस आके सर से कुछ और पूछ रहे हैं, इधर कोई और क्लास चल रही है, कुछ और पढ़ा, फिर पूछते नहीं सर वहाँ पे तो मैं भूल गया. सिनर्जी नहीं बन पाता. सिनर्जी इज इनटू फॉलोइंग अ पैटर्न. जहाँ खाली टाइम मिला वहाँ पे जैसे इसको लगा कि इसका मेडिसिन का 2 दिन एक्स्ट्रा आगे इसके पास खाली आगे जो क्लास में हुआ था 3 दिन में पढ़ लिया, 2 दिन आगे उसमें वो टॉपिक कर लिया जो अपने को लगता है कि हमारा वीक है या हमें पढ़ना है, उस समय को यूटिलाइज करके हमने अपना बीच में चीजें ड्रॉप कर दी. तो दैट इज अ गुड प्लान. अब हम इससे ना और माइक्रो क्वेश्चन पूछेंगे और डिटेल में जाते हैं. जो मैं सोचता हूँ कई लोग पूछते हैं कि गाइड्स का क्या, इन्होंने कौन सी गाइड पढ़ी, उसका क्या रोल है. कई लोग खरीदने भी चाहते हैं आपस से, तो लेट अस सी कि वो कौन सी गाइड्स को वो रिकमेंड करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद रोहन एंड देन वी गो टू. Yeah, there's nothing much to choose in between the subject guides. All of them have equal number of flaws, I think. In fact, जो सबसे अच्छी लगी मुझे, like जो Thamac जो स्पर्शगुप्ता थी, that was the least error वाला. Otherwise, Amitashis हो या मुझे नाम सारे एक ही है. There is no use of buying both the books for one subject and doing those things again and again. Instead, what I felt was do the subject-wise books till the end. And then last में read the notes thoroughly, because आजकल repeats कम आ रहा है. More number of questions are coming from the concepts, from the notes. And हमारे जो डांस के notes जो है, they are extremely comprehensive. That is sufficient. If we revise that, if we remember that, that must be sufficient. And that's what we did. We revised the notes thoroughly. And जो भी हमें subjects efficient लगे, those subjects we concentrated more on rather than reading the things which we already knew again and again. So that's what will help. And if you feel that there is some questions with Galatiya and the guides, you always have exclusive clubs. So we would just enter it in the search and we would get our answer within 2 minutes. So no doubts we नहीं solve हो जाते. We would be starting a new club soon. 2015 का DAMS exclusive club होगा जिसमें हम आपको लेंगे, क्योंकि 2014 में जब हम इंडिया के बाद उसको कम कर देंगे उसमें. We start the 2000 इंडिया एग्जाम के बाद हम 2015 में ग्रुप बना लेंगे जिसमें आप लोग होंगे.
हमारा गोल क्या रहता है, फेसबुक पे ग्रुप बनाते हैं हर साल, जिसका नाम है डायरेक्ट सोशल क्लब। हर साल का एक अलग ग्रुप होता है जिसमें टीचर्स भी रहते हैं और आप लोग भी रहते हैं, एंड इनके जैसे मेरिटस टॉपर्स जो पिछले साल के होंगे वो भी हम ज़्यादातर लोगों को इंक्लूड करते हैं, सो दैट यू गेन मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। तो आप लोग को अभी, क्योंकि अभी नया नया बैच शुरू है, तो यू माइट नॉट बी इन द ग्रुप, लेकिन बाय द टाइम ऑल इंडिया जो पिछली बार वाला खत्म होता है, विल बी हैविंग मोर एक्शन ऑन दैट। दूसरा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन मेरे को मन में आता है जो मैं सोचता हूँ कई लोग के लिए, आपके लिए भी वैलिड है क्वेश्चन, जो मैं आपकी तरफ से पूछूंगा कि मतलब when you had a rank 5000 in all India last year, तो मैं लास्ट दिव्या फर्स्ट, तो एक बार लगता है कि मतलब क्या हो सकता है टॉप 10 ऐसा, मतलब did you have that phase कि कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, then you do it, वो कैसे ट्रांजिशन कैसे आया? तब तो नहीं लगा था मैं get this rank, but I knew I do well in all India. But I got the confidence when I did well in my CBT, and throughout the dance test I was always in the top 5 in Bangalore के weekend वाले test series. So at CBT I got rank 2. So Did you give all dance tests, सारे टेस्ट? all weekends. एक मैं बात बताना चाहता हूँ, ये मैं सोचता हूँ बहुत ज़रूरी बात है, उससे मैं बाद में आपको बार बार बताऊँगा कि जो हम टेस्ट देते हैं, कई सारे लोग टेस्ट कलेक्टर होते हैं, टेस्ट कलेक्टर पता है, वो टेस्ट इकट्ठा करते हैं और वो फिर वो कलेक्टर बनने के बाद उनका मन और ज़्यादा हो जाता है, कहते चलो डैम्स के भी कलेक्ट कर लेते हैं, बाकियों के भी कलेक्ट करेंगे, तो इनके घर में सारी तरह के टेस्ट कलेक्ट होके पड़े होते हैं, लेकिन रैंक नहीं आती उससे। तो कलेक्ट टेस्ट इज नॉट, वो रैंक में नहीं कन्वर्ट होता, हर टेस्ट देने से रैंक आता है, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे आपको अपनी कमजोरी पता चलेगी, नहीं तो क्या होगा, आप जब टेस्ट घर ले जाओगे आप उसे देखोगे, आपको उसके साथ आंसर, आप टेस्ट कैसे करोगे, इधर टेस्ट की बुकलेट रखोगे, इधर आंसर की रखोगे, हाँ ये तो मैंने सोचा था, ये तो मैंने सोचा था, एंड व्हाट विल हैपन इन द एंड, वो आपको कभी इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। इंप्रूवमेंट क्लास में बैठ के टेस्ट देने के बाद घर जाके आंसर देखने में आएगा, जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, इट्स वेरी की। दूसरी चीज जो इंटरेस्टिंग चीज है which I want to share with you is कि इसका रोहन had a rank 1 in डैम्स का जो हमने CBT इस साल किया, जो आई एम श्योर आपने अभी तक सुना होगा, ये तो आप दोगे, हर साल हम एक साल के एंड में पेपर करते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जो पूरे इंडिया में हम हर सेंटर में कंडक्ट करते हैं, CBT कहते हैं। ये है रैंक 1 CBT, रैंक 1 जिपमर, जो रैंक 4 PGI चंडीगढ़ है वो रैंक 4 CBT था, मतलब टॉप 10 में जो 4 लोग थे वो अभी एम्स और PGI में और जिपमर मिला के टॉप 10 में रहे, दिस इज अ गुड रिफ्लेक्टर। तो मेक श्योर कि आप जो हम फाइनल एग्जाम देंगे उसको आप जरूर करें, क्योंकि वो पूरे इंडिया में 50 सेंटर में हम करते हैं और सारे इंडिया उसे दे रहा होता है, तो इट गिव्स यू अ गुड आइडिया कि आप कहाँ स्टैंड करें, क्योंकि नहीं तो मैं सोचता हूँ कि एग्जाम से पहले एक अंदाजा हो जाए कि मेरे में कितना दम है, तो आई कैन डू अ बेटर पेपर। जैसे मैं सोचता हूँ मोटिवेशन मिला होगा रैंक 1 आने के, कैसा फीलिंग था, डाउट था कि कैसा लगा? Till then ऐसे लगा था कि I will be in the top 100 in all India, but I knew after getting 3000 in the first attempt without much of a preparation कि after preparation शायद under 1000 तो पक्का आ जाएगा to get a seat what I want, but I did not know कि इतना अच्छा हो जाएगा। After that it was a boost कि what we are doing is right, and then we continue doing the same thing, otherwise तब strategy change करने की जरूरत होती, but we continued the same thing and then we got good results. ग्रैंड टेस्ट कब से देने शुरू की? Grand test initially after first 2 months we did not give any grand test because the ज़्यादा subjects we hadn't covered. After 2 months we started giving, maybe in around June we started giving. We gave it regularly. जो मेरा ही मानना है कि जो भी रैंकर्स रहते हैं वो ज़्यादातर आखिरी 6 महीने कम से कम वो ग्रैंड टेस्ट दे रहे होते हैं, आखिरी 6 महीने मान लो या 5 महीने। अगर हम ग्रैंड टेस्ट जैसे सब्जेक्ट टेस्ट हुआ, जैसे आज हमने पढ़ाया, आपका टेस्ट आया, तो एक आपका मन होता है टेस्ट देने का, तो वो सब्जेक्ट पढ़ा होता है यूके में, कई लोग वो भी नहीं देते, लेकिन एक हम मंथ में ग्रैंड टेस्ट भी दे रहे होंगे, जिसको शुरू में आपको लगेगा मैं ना दूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि डिप्रेशन हो जाएगा, एक बड़ा कॉमन वर्ड है मेडिकल स्टूडेंट होते हैं डिप्रेस होते हैं, तो लेकिन शुरू के जब आप सोचो कि डैम्स के आपके 6 सब्जेक्ट हो चुके हैं, 6 या 7 सब्जेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद से आप ग्रैंड टेस्ट देना शुरू कर दो, आपका रैंक इंप्रूव होगा, क्योंकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप फुल कोर्स को कैसे डील करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जानता हूँ जिनका अगर हम फोरेंसिक का एग्जाम लें, एक आज मैंने फोरेंसिक पढ़ाई और बोलो मेरा फोरेंसिक का एग्जाम हो 90% स्कोर करेगा, लेकिन जो फुल कोर्स होता है वो उसका रैंक ही नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स होने के बाद वो नहीं समझ पाते। जैसे एक सब्जेक्ट बताना उसका रैंक अलग है, पूरा मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग बात है।
तो यही जो मेरा एक इसके अंदर जो मैं बेसिक जो इंटरेक्शन का जो मैं बेनिफिट लेना चाहता हूँ कि आई वांट टू सी कि क्या प्रोसेस लोग कर रहे हैं, क्या मैं वो करूँ। तो वो टेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है उसका कि मैं ग्रैंड टेस्ट जब मेरे 5-6 सब्जेक्ट हो जाए क्लासेस में आई शुड स्टार्ट विद दिस। देखिए व्हेन डिड यू स्टार्ट ग्रैंड टेस्ट साथ में? Around the same time, मुझे भी ऐसे लगता था that when we would study that subject, वो subject में we would score very well, but grand test में it should go down. So I thought it's good कि we be in touch with all the subjects. अच्छा मैं 3 एग्जाम्स का नाम लेता हूँ क्योंकि अभी ऑडिटर तो हुआ नहीं, मैं 3 एग्जाम्स का नाम लूँगा, आप बताना इनमें कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज आई। एम्स कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज आपको लगी है? ज़्यादा वेटेज बहुत सारे questions, बहुत सारे। इस बार एक एम्स में थोड़ा सा एम्स में एक अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देखते हो कोई एक एग्जाम हर 3-4 बार में ऐसा होता है जिसमें ऑफ्थेल्म के बारे में बहुत कुछ पूछ लेते हैं। तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन डूएबल भी होती है। नॉन डूएबल मतलब वो चाहते भी नहीं कोई करे। वो कुछ क्वेश्चन जरूर रहते हैं हर तीसरे या चौथे एम्स के एग्जाम के अंदर जो ऑफ्थेल्म के, क्योंकि एम्स ऑफ्थेल्म का इंडिया का एपेक्स इंस्टीट्यूट है, सो दे हैव टू शो देयर क्वालिटी टू द फ्यूचर डॉक्टर्स इन द कंट्री। तो वो कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे पूछते हैं जो आपको नहीं कर पाएंगे, उनको इतना टेंशन नहीं लेते। नहीं तो क्या रहेगा, लोग बताएंगे वो आता है एम्स में, देख इसलिए नहीं होता। एम्स का रैंक बाकी 198 क्वेश्चन की वजह से रहता है, वो 1-2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते। लेकिन उसके अलावा ऑफ्थेल्म के अलावा एम्स में इस बार के एम्स के पेपर के बारे में कैसा लगा? तो क्या है इस बार का बाकी एम्स पिछले साल के मुकाबले क्या चेंजेस? Difference I felt majorly was there were very few repeats and there were very tricky depth में questions, very conceptual questions. आपने नॉर्मल एम्स का पेपर देखा ना, इस बार रिपीट का क्वेश्चन जो है 200 में से एम्स के अंदर 7 या 8 रिपीट क्वेश्चन है बस। डायरेक्ट रिपीट जो है ना 7-8, जो अगर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब अभी हम आने वाले समय में आपके साथ और भी इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन आपके मन में रहता है कि अमित आशीष की गाइड पढ़नी है, सुना होगा आपने, लेकिन उसमें से आपको 5-6-7 क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिल रहे। अभी एम्स वाले पिछले 2-1 बार से रिपीट कम कर रहे हैं और इंडिया तो वैसे भी कम रिपीट का ही गेम है, एएमपी भी कम रिपीट का गेम है। तो जो गाइड्स को उतना वेटेज अभी के सिनेरियो में नहीं दिया जा सकता जितना पहले दिया। सिर्फ 7-8 रिपीट जो होते हैं, आप ये मान के चलो, ये मेरे आप गारंटी मानो, अगर आपने गाइड को नहीं भी टच किया, वैसे आपकी मर्जी आप टच करना चाहें, लेकिन आपने नहीं भी टच किया, वो 8 क्वेश्चन 100% क्लासेस में वैसे भी बताए गए, तो वो एक्चुअली में एफर्ट कम हो जाता है। जो रैंक सारे लोग वो बाकी जो नए क्वेश्चन पूछने ट्राई कर पा रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा आधारित है। पीजीआई चंडीगढ़ कोई उसके लिए पीजीआई चंडीगढ़ अगर कोई क्रैक करना चाहे तो उसमें जैसे आपका 10 रैंक है पीजीआई के अंदर, तो ऐसा क्या किया पीजीआई के अंदर रैंक 10 है? फर्स्ट रैंक में कितना था पीजीआई का? फर्स्ट रैंक अच्छा पहले दिया है अभी With PGI, what I felt is you should just answer the questions that you feel are right, because there is -1 almost the same weightage as a positive score. You get almost -1 for negative marking. So what I did was I marked less. People say that they answer 500 to 550 to get the top ranks, but I answered only 450. I answered only 450 to 460 maybe. In fact, I got less time. वो प्रॉब्लम होता है एग्जाम में, less time in PGI to answer to see 1250 options in 3 hours. It's difficult. So I marked around 450 to 460 rank. It's better to get more positives and less negatives rather than more positives and more negatives. So जो sure है वही mark कीजिए, otherwise there is no point in marking. PGI, that's what it's. You have to complete the paper to be in the race, and doing that itself is a big task. It's really long. You don't even get time to go back to a question. So it's time what you feel like, mark and go ahead. There's no time to come back to that question. मैंने यहाँ ऐड करूँ PGI के अंदर ना 2-3 क्वेश्चंस हैं, and each question has 5 choices. Each question has 5 choices. Any number of choices can be correct. उन choices में कितने भी सही हो सकते हैं. अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1250 क्वेश्चंस हैं, and each choice you have to answer सही गलत के छोड़ना है. ऐसा मतलब ये मैंने yes के तो हर चॉइस अलग अलग इवैल्यूएट होती है और नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है. मतलब अगर अप्रॉक्सीमेट देखें तो यू गेट 1 फॉर करेक्टली आइडेंटिफाइड चॉइस, -1 फॉर अ रॉन्गली आइडेंटिफाइड चॉइस. तो पीजीआई छत्तीसगढ़ के अंदर कई बार अच्छे स्टूडेंट्स भी रैंक नहीं ला पाते क्योंकि वो ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं एंड दे गेस अ लॉट.
पीजीआई चंडीगढ़ एक यूनिक एग्जाम है इंडिया के अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नेगेटिव मार्किंग है, उसमें कम अटेम्प्ट करने से ज्यादा बेटर रैंक आता है। जैसे इसने बोला कि 1250 में से ही हैड मार्क्स ओनली 450, और ये पिछले 8 साल का सच है कि पीजीआई चंडीगढ़ में टॉप 50 में जो भी आया है इसने 450 से 500 के बीच में मार्क किया होगा, उससे ज्यादा मार्क करने वाले ज्यादातर कम लाते हैं, क्योंकि इसका मैथमेटिकल रूल है कि 250 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आप मानो कि एवरेज 2 चॉइस ठीक होंगी, दैट कम्स टू 500, लगभग यही रेशियो आती है उससे। जो लोग उससे ज्यादा करते हैं इसका मतलब उन्होंने गलत चॉइस आइडेंटिफाई की, उनका नेगेटिव मार्किंग 100% हो जाएगा एंड दे विल नॉट गेट अ गुड रैंक। पीजीआई चंडीगढ़ का जो एग्जाम स्किल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीजीआई के अंदर। कई बार लोग ये ना जानने के कारण बहुत ही खराब रैंक करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, दे गेस एंड वो गेस उनको उसमें गेम हो रहा है। ये कहीं केवल पीजीआई के लिए सच है, बाकी एग्जाम के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी मार्किंग एम्स का नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, और इंडिया डीएमपी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग ग्रेड समझ आएगा, वहाँ 100% है, वहाँ 33% है, वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग, तो उसी हिसाब से एग्जाम को अप्रोच भी है। जिप्पर के लिए there was no separate preparation as such. You can it's the same. आजकल तो they have been asking more of questions from AIMS pattern only. Do the AIMS के papers and the जिप्पर के of course repeats बहुत आता है जिप्पर में. This year there were around 30 repeats. But then that's not it. So you have to read the notes thoroughly and last 3 papers, 3 to 4 papers will be sufficient जिप्पर के. And even they ask conceptual questions like AIMS. जिप्पर और एम्स का पैटर्न लगभग सिमिलर है, मतलब सिमिलर से ज्यादा सिमिलर है, मतलब एक्चुअल क्वेश्चंस भी सेम आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। जो अभी एम्स में होगा वो अगली बार आप देखोगे जिप्पर में रहेगा, इट इज वेरी सिमिलर, और लगभग एक ही तैयारी से ही बात बन जाती है। पीजीआई थोड़ा अलग है, लेकिन जिप्पर एम्स एक ही पैटर्न का एग्जाम है, एकदम एग्जैक्ट। सो और मैं सोचता हूँ कोई आप लोग जानना चाहते हैं, मैं पूछूं कुछ। हैरिसन पढ़ा था यूजी में? सवाल है। सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ा था, बट डेफिनेटली बहुत सारे लोग कहते हैं मतलब क्या सिलेक्ट किया? क्या सिलेक्ट किया उसमें? I had read थोड़ा सा नेफ्रोलॉजी and because वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसने भी नेफ्रोलॉजी पढ़ा? साथ में पढ़े थे। I didn't understood that at all, तो थोड़ा सा नेफ्रोलॉजी it doesn't take a फेसबुक पे ना जो अभी इन लोग को ना लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने नाम दे दिए पावर कपल कि मतलब they are able to do it and they have performed to an exemplary level, मतलब 5000 to top 10 आना, and वो भी मतलब and they are मतलब very famous, and somebody told me on Facebook कि he is a good singer. Somebody मेरे को इनबॉक्स किया कि सर अभी वो आप इंटरव्यू लोगे गाना गा रहे हो, so multi talented। मैंने कहा कि यार there are people who are doing singing well, studying well, it is possible. I think they deserve a big hand. Alright, I think we've talked a lot about what they studied and when they started studying, but अगर किसी ने catch देखा हो, the most important thing that was there in their preparation was their strategy. Yes or no? Right? They started right from the beginning. इन्होंने भी आपकी तरह ही रेगुलर कोर्स ज्वाइन करा है। Believe me, आपके notes में सब कुछ होगा. We teach you extensively. We know what is being asked in the exams, and I'm not just saying that. अगर आप अभी के बच्चों से feedback लोगे, अगर आप सिर्फ notes पढ़ के जाते हो, you can solve 90% of questions. So please don't run around कि यहाँ से कुछ ले लो, वहाँ से कुछ ले लो. Do justice to what is being provided to you. Make your strategy and identify things which need to be done again and again. जैसे मैंने बोला, शुरू से they started identifying the things which they need to revise from the notes itself. Right? So there's a lot of material being given to you. Do justice to it. Start studying. Be regular. This is what I identified. Their strategy, their regularity, and identification of their weak areas. That's what they have worked on. And it is going to vary from one person to the other. So there is not one strategy. ऐसा कोई thumb rule नहीं है कि सब वो thumb rule कर रहे हैं और सबकी one rank आएगी, नहीं आ सकती ना? किसी की one आएगी, किसी की two आएगी. So you have to decide आपकी क्या strategy होगी, what are your weak areas, and how you want to work up on it. Right? So that's what you need to plan, and it's a very good time to interact with the toppers. है ना? कई बार आपको शुरू में टीचर्स पे भरोसा नहीं आता, बाद में आ जाएगा जरूरत से ज़्यादा,
है ना? लेकिन टॉपर्स पे बहुत ज्यादा आता है ना, क्योंकि वो आपको वही बता रहे हैं जो उन्होंने किया एंड यू रिलेट मोर टू इट. So that is the reason why we made them talk to you, so that you realize that it's a very good time to start. You need just the right direction. So maybe, I hope at least most of you would be able to make your own strategies from today onwards. Yes or no? Yes. So start working on it. Nothing is not achievable. Everything is provided you are willing to go for it. So are you willing to go for it? Yes. मैं यहाँ ऐड करूँ, इवन व्हेन आवर पेरेंट्स जब हमें कुछ बताते हैं, हमें लगता है दोस्त ठीक बता रहे हैं. Maybe that is the gap that we always have. दोस्त बता रहे हैं गाइड पढ़ ले, रैंक आ जाएगा, टीचर बता रहे हैं ये पढ़ ले, दोस्त अच्छा होगा, दोस्त अच्छा होगा. वैसे ही जो पेरेंट्स बताते थे पढ़ ले अच्छा करेगा, हम सोचते थे दोस्त कह रहे खेल लेते हैं. This is not like दोस्त, but I am sure that is one of the reasons that we try to get you as much interaction possible with people who have gotten a good rank, जो कुछ अंदाजा दे पाए. मैं अगला क्वेश्चन इससे जो पूछूंगा आपके लिए काम का, ऐसे हमने पूछा था, हम पूछेंगे पार्क पढ़ी थी बीएसएम? Park during MBBS thoroughly पढ़ी थी. After that we did not read Park much. बाद में. अच्छा, शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए क्या किया? जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स में अपन लेते हैं स्किन एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, साइकियाट्री, और इधर अपन इसके बाद लेंगे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी. ऐसे करते हैं. Skin, radiology, psychiatry and forensic. इसके लिए we read DAMS modules. We didn't touch our textbooks, and we are sorry, we just read the DAMS modules and the questions, subject wise. When you say we, I assume you're talking for him as well. So मतलब okay. दोबारा नहीं पूछेंगे, ठीक है. अच्छा, what about physiology? Physiology में क्या पढ़ते? Physiology में क्या? We had to refer BBC a couple of times, plus the notes. अच्छा, मैंने एक देखा कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं, मतलब कुछ रैंकर्स जो मैं इतने सालों बात करता हूँ, कहते हैं कि सर हम क्लास नोट्स के साथ वो मैथमेटिक्स का एटलस रख के पढ़ लेते हैं तो ओरिएंटेशन बन जाता है, इससे कोई तो आंसर एटलस. तो ये एनाटॉमी के अंदर ना कैसे क्या क्लास में हमने पढ़ा, और हम अगर उसको क्लास में जैसे जब टीचर पढ़ाएंगे शो यू एनाटॉमिकल पिक्चर्स एंड गिव यू कोरिलेशन, वो पिक्चर्स में हम आपको दे देंगे. लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो पिक्चर्स को या लेटर्स जो भी उन्होंने पहले एटलस पढ़ी होती है एनाटॉमी की, उसके साथ रख के एमसीक्यू करते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है. क्योंकि एनाटॉमी में ना जैसे क्वेश्चन है कि इस यूरेटर का पोस्टीरियर रिलेशन इनमें से कौन सा है, तो ये पेपर में ना स्ट्राइक करने के लिए ग्रॉस आइडिया होना जरूरी है, यूरेटर कहाँ से जा रहा है, पीछे क्या आगे क्या है. रट्टा मार के जाएंगे तो पेपर में अगली बार कोई और रिलेशनशिप पूछ लेगा. तो 3D ओरिएंटेशन एनाटॉमी के लिए मैं सोचता हूँ वैल्यूएबल रहती है. अच्छा, इसमें क्या किया, जो अगर देखें तो ENT ऑफ है, एनीथिंग स्पेशल नोट्स ही पढ़ते हैं. अच्छा, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें लगता है कि लास्ट लुक्स पढ़ी, लास्ट लुक्स की क्या भी टाइम ज़्यादा नहीं मिला. क्यों एग्जाम पढ़ी रैंक आ गया? हाँ, वही मतलब लास्ट लुक्स करके एक मटेरियल जो हम आपको लास्ट में हम देते हैं, लास्ट मतलब आखिरी 3-4 महीने पहले देते हैं, which is totally based on DNP पैटर्न, जिसमें DNP और ऑलिटिया के पैटर्न के हिसाब से वन लाइनर्स की कंपाइलेशन है पूरी, वो हर साल अपग्रेड होती है, तो वो हम हर बार नया एडिशन देते हैं. तो वो इनके लिए वैलिड क्वेश्चन कम था क्योंकि इनका रैंक पहले आ गया, तो मैंने ऑलिटिया तक खेले ही नहीं, मैच पहले ही सेंचुरी हो गया, 10 ओवर बचे हुए थे अभी खेलने के लिए और मैच पहले जीत गए, तो इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन. और कोई चीज जो तुम्हें लगता है कि जो इनको करनी चाहिए, जो काम आ सकती है इनको एग्जाम के लिए, तुम्हारी तरफ से मतलब क्या मैसेज है? One thing what I feel is the most important thing while studying, whatever we come across, whatever small point it is, we should make some way to remember it, because there are so many facts that at the end we'll end up making a mess in the exam. So every small point जो भी हमें लगेगा कि हम भूल जाएंगे, तो we should make some mnemonics or whatever, some way to remember it, so that वो connection से we will remember, because once we see the options, उसमें से वो option दिख ही जाएगा, because you don't have to remember it, when you see it you will answer it, so some way to remember it. I'd like to quote Sumesh sir that we are not Superman, so we have to make a way to remember each and everything. That's what he used to tell us. That's what we followed. मेरा ये मानना है कि ना, मतलब मैं खुद कैसे पढ़ता था कि जो क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन के अंदर ही ना मैं आंसर को उसी के क्लू में डालता था कि अगर ऐसा लिखा है तो ये आंसर बनेगा, तो वो पेपर में भी याद आ जाता था कनेक्शन, नहीं तो पेपर में याद नहीं आता. दूसरा क्या है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो
कि एग्जाम में इस चीज के कोई नंबर नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है। एग्जाम में नंबर सिर्फ उसके जो आपने ठीक बताया, जो आप मार्क करोगे पेपर में, जो आप सही करोगे। आपने बहुत पढ़ा लेकिन पेपर में मार्क नहीं कर पा रहे, इट इज वैल्यूलेस, उसको कोई वैल्यू नहीं देता, उसको कोई पूछता भी नहीं, उसका कोई इंटरव्यू भी नहीं लेता। समझ पा रहे हैं? आपने बहुत कुछ पढ़ा, आप बहुत अच्छे थे पढ़ने के अंदर, आप होशियार थे, पर पेपर में आपका स्किल अच्छा नहीं था, तो आपका इंटरव्यू भी नहीं आएगा, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। इट इज इमटेरियल, आप जानते हैं बात। पेपर वाले दिन वो लोग सीख करते हैं जिन्हें आंसर उस दिन पे समझ आता है। वो तब समझ आएगा जब आपने पढ़ते हुए कनेक्ट बनाया था कि ऐसा अगर पूछा जाता है तो ये इसका मतलब है और ये इस कारण से ये आंसर होता है। ये आप अगर आप वॉलंटरली कोशिश करोगे तो बात बन जाएगी। अगर आप सोचोगे मैंने पढ़ लिया मैं कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे मैं नहीं कर पाऊंगा तो तरीका बनेगा और वो याद आएगा। मतलब अगर आप अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करेंगे पढ़ते हुए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम पढ़ते हुए ओवर एस्टिमेट करेंगे, जैसे कई लोग आते हैं कहते हैं सर हैरिसन पढ़नी शुरू कर दी है, इस बार एम्स में टॉप करने वाला हूँ, तो वो लाइन जब उसने बोली उसी दिन मैं समझ गया कि इसका कोई रैंक नहीं आने वाला, मैं एम्स में ना कहीं पे, बिकॉज अनरियलिस्टिक टारगेट है और वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, व्हिच इज नॉट फेयर। अगर वो ये कहता है कि नहीं मैं सर ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं रास्ता बना रहा हूँ, रियलिस्टिक बात है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। समझ पाए? अच्छा, दूसरी चीज ना जो मैं एकदम बहुत ही यूनिक क्वेश्चन इनसे पुट करूंगा तो वही है कि खासतौर पर रोहन से ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि रैंक 1 लाने के लिए मतलब और क्या यूनिक चाहिए, मतलब सिलेक्ट तो ठीक है, मतलब रैंक 1 कैसे? ये तो आई डोंट नो, मतलब कैसे, मतलब कैसे मतलब दे वांट टू नो मतलब रैंक 1 के लिए उस दिन पेपर में क्या, मतलब डिड यू ईट समथिंग, सो दे वी माइट ट्राई दैट फॉर एवरीबॉडी लैब्स के साथ इसको पैकेज में डाल देते हैं। तो व्हाट इज टू बी, इट वाज जस्ट लाइक एनी अदर रेगुलर। सोया है रात को, रात को सो भी गया। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं कि 7 hours sleep is very important for topping. सुबह कुछ खाया था मतलब 7 to 8 hours before every exam is a must. And ज़्यादा भी नहीं पढ़ा था कि पिछले दिन ऐसे you cannot do anything on the last day as such. So whatever strategy was there till then, it was the same. Slept well, went for the exam and wrote the exam just like any other dance का Saturday exam. So that's it. I didn't think I'll get rank 1, but I did well. So finally, it depends upon how others perform on that. Another point that I would want to add here is because एक बात को ना बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, which is मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। All toppers they sleep well the exam before. अब एग्जाम से एक रात बिफोर अच्छे से जो लोग सोते हैं वो एग्जाम में उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है। होता क्या जब पढ़ रहे होते हैं we become nocturnals, मतलब रात को पढ़ना शुरू हो जाता है, तो एग्जाम में जाके कई बार वो बात रिवर्स करनी मुश्किल हो जाती है, दिन में नींद आ रही होती है। एग्जाम में जबकि प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑप्टिमम चाहिए हमें, ऑप्टिमम। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, हम आपको बार बार याद कराते रहेंगे कि एग्जाम से पहले 1 week बिफोर 10 days बिफोर कम से कम अपना स्लीप में एक साइकिल बदल देना चाहिए। You should start sleeping in the night ताकि एग्जाम वाले दिन we are of utmost alertness, तो ताकि तभी हम जो नहीं भी आता हम उस दिन अच्छे से सोच पाए, क्योंकि एग्जाम वाले दिन सोचने की बहुत वैल्यू है। मैं अभी रोज दोबारा पूछूंगा क्वेश्चन कि एग्जाम वाले दिन ना जैसे हमने सपोज एक 200 क्वेश्चन का हम पेपर दे रहे हैं, क्या ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस यू वर एबल टू थिंक ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, जो पहले नहीं भी पता था उस दिन सोच ली? there were several questions like that because मुझे लगा कि रूल आउट करने से आंसर ज्यादा आ रहा था rather than I did not know many questions जो मैं पहली बार देख रहा था। So out of the 4 options I could rule out 2 options and उनमें से भी then we'll have to select थोड़ा सा जज करके with some instinct and then finally we get an answer. So ऐसे बहुत सारे questions थे जो मुझे लगे कि I had never seen before but I could still get them right. चलो मैं यहाँ ऐड करूँगा बात में, जो मैंने देखा है कि जो लोग रैंक पीछे लाते हैं जो टॉप करते हैं उनमें क्या फर्क होता है। जो टॉपर होते हैं ना वो क्वेश्चन को देख के सोचते हैं कि मैं आंसर करूंगा, समझ में क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें इसका आंसर ढूंढ लूंगा, दे ट्राई एक्सक्लूजन, दे ट्राई व्हाट दे नो, जो जानते हैं जो वो जानते हैं उस वहां से शुरू करके जो वो नहीं जानते वहां पहुंच जाते हैं। पेपर वाले दिन जितना पढ़ के आए थे क्वेश्चन कुछ और उससे ऊपर आ गया, बट दे आर एबल टू से कि हाँ यार इतना तो मैंने पढ़ा था, ये 2 तो नहीं है, ए और बी रह गया, इसमें से ये लग रहा है, दे मार्क इट। जबकि जो लोग पीछे रैंक लाते हैं उनमें से कई सारे लोग क्वेश्चन देख के कहते हैं ये मेरे से नहीं होगा और वो छोड़ देते हैं, तो उसका नंबर है 0, इसका आगे +1, तो ये आगे बढ़ते जाते हैं। जो ये एक स्किल है, एमसीक्यू एक स्किल है, ये आपने अभी तक कॉलेज में नहीं सीखा,
इसको सीखने के लिए एक जो मैं आपको जो मेरा सजेशन रहेगा, जब भी आप ग्रैंड टेस्ट दें या टेस्ट दें, टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग से मत करो। समझ पा रहे हैं? जब क्लास टेस्ट लेंगे नैप्स का या हम ग्रैंड टेस्ट लेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग से मत करो। उसमें 3-4 टेस्ट आप एग्रेसिवली दो, देखो कि आपका जो सोच है एग्जाम वाले दिन क्या आंसर बता रहा है आपको, आपकी इंस्टिंक्ट क्या कह रही है, आपका तुक्का कैसे बैठ रहा है, एंड यू विल बी सरप्राइज जो आप सही सोच रहे थे गलत करके आओगे और जो गलत सोच रहे थे ठीक करके आओगे। इवन एवरी ईयर वी टॉक टू मेनी टॉपर्स, दे विल से कि सर जो मेरे को 2-4 बातें मैंने तुक्के मारे वो सही बैठ गए, वो तुक्के नहीं थे, वो उसकी स्किल थी जो उसने इतने साल में एक्वायर की। और एमसीक्यू एक आर्ट है। लास्ट रिव्यू आल्सो कि मतलब हम जब अच्छा रैंक पीजीआई में भी लाए, क्या उस दिन सोच पाने में फायदा मिला हमें? उस दिन सोचा हमने क्या मतलब रूल आउट कर पा रहे थे चीजें, या ऐसा था कि सब कुछ पहले ही पढ़ा हुआ है सब पेपर? That's not possible. सब कुछ पहले पढ़ना is impossible. So you have to think on that day. And as I said, 2-3 चीजें तो रूल आउट हो ही जाती है. And then for the other 2 options, you have to make an educated guess. Educated guess बहुत अच्छा वर्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। I can use it, मैं copyright में use it। Educated guess मतलब एक बहुत ही यूनिक बात है, लेकिन ये चीज यूज ब्रिलियंट वर्ड जो पीएमटी के अंदर, पीजी एंट्रेंस के अंदर, आईआईटी के अंदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिंदगी में लिखोगे या लिखा है आगे दोगे, these are all based on जो टॉपर्स होते हैं उसका रैंक इज बेस्ड ऑन एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस मतलब बहुत सारे लोग एवरेज क्वेश्चन ठीक कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग वो भी ठीक कर रहे होंगे जो आम स्टूडेंट्स को नहीं आता, वो उनका एजुकेटेड गेस जो है वो ज्यादा बेहतर है। जबकि जब वो बाहर आते हैं या जिससे इसका रैंक 1 आ गया, अगर मैं आपसे ना मिलवाऊं इसे, आप घर में इसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे इस तरह का, यू विजुअलाइज समथिंग एल्स। आप सोचोगे कोई अलग ही लोग होंगे, रैंक 1 लाते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते रहते होंगे, शेव भी नहीं करते होंगे, you have your own idea about toppers. When you meet him, then you think ये तो नॉर्मल है, मैं कैसे नहीं लाया रैंक? I want you to understand कि एग्जाम स्किल्स जितनी आप डेवलप करोगे उतना अपने आप को आप सिलेक्शन से टॉप 100 में ले जाओगे। मतलब स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है कि मैं सिलेक्शन में पहुंचूं, दूसरा सिलेक्शन से टॉप 100 में, फिर टॉप 10 में, ठीक है कि नहीं? तो इट हैज टू बी वर्कड अप। वो पढ़ेंगे, कंटेंट बढ़ाएंगे अपने अंदर, नॉलेज बढ़ाएंगे, जितनी नॉलेज बढ़ती जाएगी एजुकेटेड गेसेस भी इंप्रूव होते जाएंगे। समझ पा रहे हैं? अगर मैंने पढ़ा कम तो मैं गैस भी जो मारूंगा वो तुक्का ही होगा, वो जैसे एज गुड एज अक्कड़ पकड़ करके ऐसा नहीं बनेगा। एजुकेटेड गैस में तो मैं सारा फिजियोलॉजी पढ़ा हुआ था, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर जो है ये मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आई नो द कॉन्सेप्ट, तो मैं ये 2 हटा लूंगा, इसका बारे में एक अच्छा गैस ले पाऊंगा। और टॉपर्स के गैसेस ज्यादा अच्छे होते हैं दूसरों के मुकाबले उस दिन के एग्जाम के लिए। लेकिन अगर उन्हीं को दोबारा वो एग्जाम या कोई और एग्जाम दिया जाए, जरूरी नहीं सेम परफॉर्मेंस आती है, ये उस दिन की बात है। लेकिन ये टॉप 5 के बीच में फर्क आएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं। जैसे अगर सिलेक्ट आप अच्छे हो तो सिलेक्ट जरूर हो, पेपर अच्छा करोगे टॉप 100 में जरूर आओगे, और अच्छा करोगे टॉप 10 में जरूर आओगे। 10 के बाद 1 to 5 इन दोनों के बीच में आई एम श्योर 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन से ज्यादा फर्क नहीं होगा। मतलब दिस इज हाउ इट गोस। टॉप 10 के बाद नैरो मार्जिन उसमें फिर किस्मत का एलिमेंट आता है, लेकिन किस्मत सिलेक्शन को नहीं मैटर करती। ये सब झूठ है जो लोग कहते हैं किस्मत खराब थी सिलेक्ट नहीं हुआ, गलत। ऐसा कुछ भी नहीं है, किस्मत खराब थी टॉप 100 में नहीं आया, गलत। ये हो सकता है कि किस्मत खराब थी मैं 5 आ गया, हो सकती बात, इट इज ओके। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, किस्मत कैन नॉट प्ले सच अ मेजर रोल कि आप सिलेक्ट नहीं हो। वो किस्मत का भाग है, वो कंटेंट, नॉलेज और मतलब 2 भाग हैं, कंटेंट नॉलेज इकट्ठी करनी और एग्जाम स्किल्स को डेवलप करना। मैं तो चाहूंगा कि आप 2 चीजों पे काम करेंगे जरूर सक्सेस पाएंगे। सिर्फ पढ़ते रहेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, बात नहीं बनेगी, है ना? देयर इज द फाइनल वर्ड्स फ्रॉम देम। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पूछा तो मे बी मैं पहले आपको क्वेश्चन देता हूं, फिर विल हैव द फाइनल वर्ड्स। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? विजुअल क्वेश्चंस का मैंने जानबूझ के नहीं पूछा क्योंकि इन एग्जाम्स में कम अहमियत है। जो एम्स, जिपमर और पीजीआई के अंदर विजुअल्स की कम अहमियत है। एम्स के अंदर जो विजुअल्स आए वो डॉमेट प्रीडोमिनेंट है और 4, 5 या 6, 7 ऐसा ही नंबर है, बहुत ज्यादा नहीं है। इस बार हम आपको दे देंगे, एम्स के सारे क्वेश्चन है हमारे पास जो इस बार आए, वो सब आपके साथ डिस्कस करनी है। विजुअल्स की ज्यादा वैल्यू डीएनपी में और उससे भी ज्यादा ऑल इंडिया के अंदर, और इंडिया में ज्यादा प्रोपोर्शन आती है। डीएनपी में भी क्योंकि क्वेश्चन का टोटल नंबर कम है तो विजुअल ठीक है, ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो वो अभी ऑल इंडिया के जब हम रैंक का आपसे बताएंगे, दैट विल बी अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। वैसे फिर भी विल पुट अ क्वेश्चन टू देम, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर विजुअल्स? अभी रैंक नहीं आया था, रिजल्ट नहीं आया था, तो कैसे प्रिपेयर किया? विजुअल्स के लिए द डीवीडी जो था दैट वाज
एक्सटेंसिव कवर हो गया था उसमें सब कुछ। So those visuals plus DBT आपने कहाँ अटेंड किया? अच्छा क्वेश्चन हाँ हुबली में अटेंड किया DBT। मतलब we are very proud of this. Today DAMS is present in every city of the country, मतलब including Hubli, Cochin, Thrissur, we have a center in Agartala, we have a center in Srinagar, in Garhwal, Srinagar, in now we are opening in Srinagar in J&K as well. So मैं जो चीज़ जो यहाँ आपको पॉइंट करना चाहूँगा, एक सेशन जो हम करते हैं साल में DBT जो पूरे इंडिया में हम करते हैं, मैं सोचता हूँ आपने सुना भी होगा, तभी शायद आपने हमें चुना भी है। DBT एक सेशन है जो हम 3 दिन लगातार एंड में हम सारे सब्जेक्ट्स आपकी रिवाइज करेंगे, वन लाइनर्स रिवाइज करेंगे, वैल्यू वाली चीज़ें और विजुअल्स हम रिवाइज करेंगे। सो दैट इज द सेशन जो यहाँ पे दिल्ली में आप फेस टू फेस अटेंड करेंगे, बाकी जगह पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करेंगे, लेकिन होता हर जगह पे। I think sir, the timing of DBT was also appropriate. It was in September end, जब हमारे classes were over. So we had gone through everything at least once and some subjects even twice. So as an everything was like new for us. We could, and that made the learning process better. Assimilate more because हम already पढ़ चुके हैं. That is our idea as well. जो मैं आप लोग को भी पॉइंट करना चाह रहा हूँ बात कि आप लोगों ने जिस समय पे ज्वाइन किया है, I'm sure you know this कि आपका जब ऑल इंडिया एग्जाम होगा उससे काफी आपका कोर्स खत्म कर देंगे। You will have ample time to revise. On September के लगभग you will have a revision session again DBT के फॉर्म में, and we'll make sure कि हमारी तरफ से you are fully prepared, जो हम कर सकते हैं वो हम सब करके आपको भेजेंगे। बट आपको ये फायदा जो मैं चाहता हूँ उसका पूरा फायदा ले सकें कि अगर हम अब पढ़ना शुरू करते हैं जिस पॉइंट पे आप पढ़ रहे हो अभी, इसका एक फायदा है कि जो लोग फ्रेशर्स होंगे ज्यादातर जगह पे उनका इंटर्नशिप या जनवरी या मार्च में शुरू होगा और दूसरा वो उस समय पढ़ना शुरू करेंगे। जो लोग अभी ऑल इंडिया सीरियसली दे रहे होंगे वो रिजल्ट के तक इंतजार करेंगे। पेपर आपका कैसा भी हो, पेपर के बाद एक होप जाग उठती है, वो पढ़ने नहीं देती है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, आप मेरी बात समझ पाएंगे कि जैसे मैं ऑल इंडिया का अगर एग्जाम लिखूँ, मैंने कैसा भी पेपर करूँगा, अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि रिजल्ट की इंतजार करूंगा, क्योंकि लगता है मेरेकल हो सकता है। तो मोस्टली फ्रेशर्स भी बाद में पढ़ेंगे और सेकंड अटेम्प्टर्स भी बाद में आएंगे। तो आपके पास जो एज है वो ये महीने हैं, जो लोग फरवरी से पढ़ेंगे, यू हैव टाइम टू यूज दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। तो टाइम जो है ये टाइम अभी जो हम यूज करेंगे वो आखिरी में जनरेट हो जाएगा, आखिरी में वो रिवीजन के लिए बन जाएगा। और जो लोग बार बार पढ़ते हैं उसको ज्यादा याद रहता है। मैं ये बात इनसे भी पूछूंगा, लेट अस सी इफ दे एग्री और नॉट। रिवीजन कितनी बार मतलब पढ़ी हमने, मतलब अपने नोट्स को कितनी बार हमने पढ़ा होगा एग्जाम, एक बार कोर्स खत्म होने के बाद एग्जाम से पहले कितने रिवीजन किया? 3 बार तो पढ़ा होगा सारे, like 3 to 4 times, because some subjects which we felt we knew less, उन पे ज़्यादा concentrate किया, and जो आता था and उसपे थोड़ा like we read it only twice। तो ये भी बड़ी important बात है, पता होना कि आता था। कई बार लोगों को ये नहीं पता था क्या नहीं आता। It is to be, ये मेरा आपसे एक और मेरा सजेशन है कि every time you give a grand test के अंदर आपका जो रिजल्ट आएगा वेबसाइट के ऊपर जब आप लॉगिन करके देखेंगे उसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगी टैब्स में। यू कैन नो कि आप किस सब्जेक्ट में सबसे पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर काम करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कई लोगों को 1 साल तक पता ही नहीं चलता कि वो कमजोर किस सब्जेक्ट में। आप सोचिए बड़ी आसान बात है, मुझे तो पता है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता चलता। एंड वो कैसे, कई बार स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, जब वो ज्वाइन करते हैं, वो मेरे पास ज्वाइन करते हुए कहते हैं सर मेरी बायोकेमिस्ट्री कमजोर है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ठीक है। फिर वो बीच में कहते हैं सर बायोकेमिस्ट्री बड़ी कमजोर है। फिर वो साल के एंड में सर बायोकेमिस्ट्री गंदी लगती है मुझे। रिजल्ट के बाद आते हैं, कहते हैं सर बायोकेमिस्ट्री की वजह से रिजल्ट नहीं आया। मैं कहता हूँ यू एक्चुअली न्यू इट ऑल अराउंड। तुझे शुरू से पता था कि तेरा ये कमजोर है, व्हाई डिड यू नॉट वर्क, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत क्यों नहीं की, उसके क्वेश्चन ज्यादा क्यों नहीं प्रैक्टिस किए। वो लोग करते नहीं क्योंकि जो कमजोर होता है वो पसंद भी नहीं आता, हम उससे धक्का मारते रहते हैं। समझ में, जैसे मुझे बायोकेमिस्ट्री अगर नहीं पसंद तो मेरी अच्छी भी नहीं होगी, उससे धक्का मारता रहूंगा और आखिरी में किस्मत बोलो या लॉ मर्जी बोलो, पेपर में बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन 25 आ जाएंगे उस साल। दिस इज हाउ लाइफ इज। तो इसलिए अपना कमजोर सब्जेक्ट को पहचानो, उसके लिए एग्रेसिवली काम करो, उसको ठीक करने के लिए आपकी रैंक अपने आप में हो जाएगी। Let us have, you have some questions? Yeah, we have. Yes. Sir, आपने बताया था कि रिपीट क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, तो जैसे ऑल इंडिया के पेपर्स होते हैं और एम्स के पेपर्स होते हैं, अगर ऑप्शन हो कि सब्जेक्ट बेस्ड करें या पेपर्स करें, तो दोनों में से कौन सा करना चाहिए? मतलब सब्जेक्ट वाइज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या ऑल इंडिया के पेपर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मेरा मानना ये, मैं पहले अपना बोल देता हूँ, नहीं तो देखो लगेगा मैं उनके आंसर से बायस हो गया।
मेरा मानना ये है कि लेट्स फोकस मोर ऑन क्लास नोट्स और कुछ सब्जेक्ट वाइज गाइड्स। अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एमसीक्यू हम करना चाहते हैं क्योंकि उसी का पेपर होना है, तो जितने करें अच्छा सब्जेक्ट वाइज करने में, क्योंकि वो सिंक्रोनस विद क्लासेस जाता है। क्लास में ईएनटी हो रहा है, ईएनटी का क्वेश्चन कर लिए तो ज्यादा बेहतर है, या फिर मेडिसिन हो रहा है तो मेडिसिन की कर लिए। लेकिन जो ऑल इंडिया वाले जो क्वेश्चन मिक्स्ड बैग जो है ना, जो उनका 5 वॉल्यूम जो उसे कहते हैं, उसकी अहमियत कम है क्योंकि रिपीट उतने आते नहीं है और वो टॉपिक वाइज अरेंज भी नहीं है, तो वो पढ़ने में भी मुश्किल है और रिपीट भी नहीं है। मेरा ये लेकिन सब्जेक्ट वाइज भी सबका तो नहीं कर सकते, तो सबका नहीं, रेफरेंस सब्जेक्ट्स की है। मेरा मानना है एमसीक्यू अगर आपने प्रैक्टिस करने हैं तो इन सब्जेक्ट्स की करनी चाहिए आपको। मेडिसिन, सर्जरी, पैथ, फार्मा, पीएसएम। मेडिसिन, सर्जरी, पैथ, फार्मा, पीएसएम, क्योंकि ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं। इनकी एमसीक्यू करने में हम रिफाइन हो जाएंगे, हमें ज्यादा मिलेगा। पीएसएम में बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, मेडिसिन से बहुत आते हैं, सर्जरी से बहुत आते हैं, तो इनकी जितनी प्रैक्टिस करो अच्छा है। और जितने बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो सब क्लास नोट्स में छोड़ दे, उससे कुछ भी आती है। इसमें क्लास नोट्स प्लस एमसीक्यू कर ले, गाइड सारी बाकी सब छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब गाइड जो भी नाम सुने सब छोड़ दे। तो शॉर्ट सजेस्ट की अवॉइड कर सकते हैं 100%। 100%। मैं तो ये कहता हूँ कि ज्यादातर अगर क्लास के अंदर शुरू भी किया तो शॉर्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन काफी हद तक कर लेगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन आते हैं, जो अगर सपोज रेडियोलॉजी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा आया जो क्लास में नहीं हुआ, तो कोई भी गाइड कर ले वो फिर भी नहीं कर पाएगा। समझ में आता है? 10 में से एक क्वेश्चन ऐसा है मैंने नहीं बताया, वो ऐसा भी नहीं होगा कि वो कोई गाइड करने से आ जाएगा, वो क्वेश्चन ही ऑड होता है एक आता है। दैट्स ऑल। ज्यादातर सब कुछ हम क्लास में से ही मैं बोलूंगा हो जाए। अब मेरा इसमें क्या है, देखो एक आइडिया बताता हूँ। कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने ना पिछले साल मैंने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सब ये बोलते हैं, सब यही बोलते हैं। मैं उसको बोलता हूँ अच्छे से पढ़ने का तेरा क्या मतलब है, इलैबोरेट, है ना? तो वो कहता है कि सर मैंने ना ऑप्स गायनी के एमसीक्यू किए और मैंने एएनटी के एमसीक्यू किए, ऑप्थाल के एमसीक्यू किए। मैंने कहा मेडिसिन वगैरह की कि नहीं की? क्या सर वो मैंने छूट गई मेरी। तो मैं कहता हूँ इसका मतलब तेरे प्रायोरिटी गलत है। एमसीक्यू एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वही मेडिसिन पीएसएम से बनता है और सर्जरी का तो फार्मा माइक्रो फिर भी हम इसमें से कम कर सकते हैं, लेकिन ये चंक है। अब यहाँ लेकिन एक कैच है, यहाँ जो कैच है, जो अभी ऑल इंडिया का जो एग्जाम का पैटर्न है, जो भी होना है, जो दिसंबर 1 से होगा, ऑल इंडिया के एग्जाम में मेडिसिन की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी ट्रेडिशनली मानी जाती थी कि हैरिसन पढ़ लो ये सब। तो अभी आप देखो कि जितने रैंक करें, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कवर टू कवर हैरिसन पढ़ रहा था बचपन से, ऐसा नहीं आ रहे रैंक, ऐसे नहीं आ रहे रैंक, क्योंकि कवर टू कवर हैरिसन पढ़ने वाले लोगों ने बाकी सब्जेक्ट सेक्रीफाइस किए होते हैं और एग्जाम बैलेंस होता जा रहा है। मेडिसिन का प्रोपोर्शन ऐसा नहीं रहेगा कि हैरिसन से पेपर आएगा, ऐसा नहीं, रेडियोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, पीएसएम के भी आएंगे, ऑर्गेनिक के बहुत आ रहे हैं, डीएनपी के एग्जाम में तो खास तौर पर ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, which you will appreciate in the times to come, I'm sure. So let us have a word from them regarding which subject guides to prefer and did they actually benefit from the 10-year जो traditional बोला जाता है, that's it. Yeah, I actually every subject का guide we had got, every subject का, but we could not बहुत सारे गाइड्स करिएगा। नहीं, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज थी खरीदी तो थी, खरीदी हाँ, बट what we realized was towards the end there was no time to read any MCQs. The time what we did at that time was read notes thoroughly and MCQs ज़्यादा मेडिसिन, सर्जरी, the major subject what sir told, उनके major subjects के questions करके बाकियों के सिर्फ notes पढ़े, because we could not manage to do that at the end because we had hardly 10 days time for 19 subjects towards the end. So that's what we could do and that was sufficient, I believe. I'd like to add something. The first time जब हम we started studying, so that time we read all the subjects from the guide the first time. And what we did was we made this book in which we wrote the important points from the notes and the some of the points which were given in the guide. So the second time when we were doing, we did just the notes and those extra points which we had written in that notebook. So guide we did once, but not for the revision. Now here I would like to add something जो मैं सोचता हूँ बहुत वैल्यूबल बात है, जो मैं सोचता हूँ आपका जो क्वेश्चन है वो भी आंसर करती है कि यदि मैंने किसी सब्जेक्ट की गाइड कर भी ली एक्स्ट्रा, ठीक है, लेकिन मुझे ये बात मन में पता होनी चाहिए कि आखिर में मैं केवल नोट्स पढ़ूँ, ठीक है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जैसे हम लोग अपने समय में कैसे पढ़ते थे कि मैं ना एक ब्लेड लेके ना अपनी गाइड में से ना वो पेज ही फाड़ लेता था, मैं बहुत आलसी था, मतलब बहुत हार्ड में रैंक जाता था लेकिन पढ़ना नहीं चाहता था, तो आई वुड यू नो टेक अ प्लेट और वो टेबल उसमें से फाड़ा और अपनी कॉपी में स्टेपल कर देता था। तो उससे क्या होता था, मेरी आखिरी में मैं कॉपी पढ़ता था, क्योंकि मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, इट शुड हेल्प मी इन द डे ऑफ द एग्जाम। वो तभी होगा जब मेरी रिवीजन कॉपी के अंदर वो होगा,
तो अगर आप ज्यादातर लोग जो अच्छा रैंक लाएंगे देखेंगे वो बोलेंगे कि हमारी चीजें कंपाइल्ड थी। अच्छे स्टूडेंट और भी हैं, ऐसा नहीं कि ये केवल अच्छे बहुत सारे होंगे, लेकिन वो सब रैंक नहीं लाए क्योंकि कई अच्छे स्टूडेंट डिसऑर्गेनाइज होते हैं, उनका सामान फैला हुआ होता है। समझ पा रहे हैं कि उसने भी बहुत पढ़ा लेकिन वो एक जगह कंपाइल नहीं था, रिवाइज नहीं कर पाया, पेपर में याद नहीं है। सर फिर तो हमने गाइड्स को टारगेट कर रहे हैं कि तो हम मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर ज्यादा और उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज मिलेगी उसको नोट्स में डालने की कोशिश करें। सर फिर अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें वैल्यू उसकी मिलेगी, नहीं तो वो वैल्यू मिल नहीं पाएगी, नहीं तो आप भूल जाओगे आपने क्या पढ़ा था। ये बात एक फैक्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो बहुत जरूरी है कि पिछले 4 साल में मैं आज तक कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं मिला जो आखिरी में सब्जेक्ट वाइज गाइड रिवाइज कर पाए। कोई रिवाइज नहीं कर पाता। बाजार में बहुत सारी गाइड्स हैं जो बहुत मोटी हैं, वो रिवाइज नहीं हो पाती। आखिरी कितने दिन सोचते हो आप? आखिरी में 15-20 दिन ही तो रिवाइज करोगे ना, 20 दिन नहीं करोगे, 20 दिन रिवाइज। एक साइकिल 20-25 दिन का बनाओगे मैक्सिमम, तो 20 दिन में क्या सोचते हो क्या करोगे? वो नोट्स को ही करना है। अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो अभी से मैं उसी डायरेक्शन में काम करता हूँ कि अगर मुझे कुछ चीज एक्स्ट्रा लगती है, भाई किसी ने भाई अगर फार्मा में केमिस्ट्री पढ़ी उसको अच्छा टेबल मिल गया है जो मैंने नहीं बताया, हो सकता है कि अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज आपने ढूंढी वहीं जोड़ लो ना, तो फिर ज्यादा बेटर है। मेडिकल साइंस बहुत बड़ी है। अगर आप ये सोचते हो कि जिस दिन परफेक्ट हो जाओगे सारे सब्जेक्ट्स में उस दिन रैंक लाओगे, तो वो 10-15 साल का प्लान है, उतना नहीं चाहिए हमें इसी साल में प्लान करना है, इसी साल में काम खत्म करना है। तो मुझे हर चीज की एक आइडिया लगना है कि इसके बेसिक फंडा मेरा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया। ऐसा नहीं आपने ये सर्जन नहीं बन जाना अभी, नहीं तो क्या होगा वो टाइम किसी और सब्जेक्ट का कट जाएगा। कई लोग मेरे साथ कई सारे लोग हैं मैं जानता हूँ जो अच्छा रैंक नहीं ला पाए, वो इस कारण से कि उन्होंने 3 महीने एनटी पढ़ी, 2 महीने ऑप्शन पढ़ी, रैंक नहीं ला सकते। इट्स नॉट टाइम, इतना टाइम नहीं है आपके पास। टाइम अगर आप नहीं गिन पा रहे, मैं आपकी मदद करता हूँ। आज नवंबर 30 है और अगले साल इसी समय आपका ऑल इंडिया एग्जाम 1 दिसंबर को शुरू होने वाला होगा। गिन पा रहे हैं? कितना ही टाइम उसमें आप इतना और सोचो कि आप भाई हर चीज को परफेक्ट कर पाओ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेजर चीजें प्लग हो जाए, सब चीज के बेसिक फंडे बन जाए, दैट इज गुड। और अच्छा एग्जाम दें, अच्छे एग्जाम की प्रैक्टिस करें, दैट इज गुड। इज दैट फेयर? और फिर सर हमने जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज करते हैं उसमें लिखा होता है कि तुमने गाइडेंस पढ़ी है, डायगोनॉम पढ़ी है, एडिसन पढ़ी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो हमने नहीं पढ़ी और टाइम भी नहीं, तो हम सिर्फ नोट्स और हमने भी नहीं पढ़ी, इसने भी नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी। नहीं तो वो थोड़ा डिप्रेसिव होता है। मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, मैं देखो उसका आंसर दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम सच माने, जैसे ना मैं इतने साल में इतने सारे टॉपर्स मिला, बहुत सारे टॉपर्स हैं। मेरा खुद का ऑल इंडिया पीजी रैंक 4 था जब मैंने मेरे समय पे दिया, तो मैंने कभी गाइडर नहीं पढ़ी। मैंने बहुत सारे टॉपर्स देखे जिन्होंने हैरिसन नहीं पढ़ी, जिन्होंने बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, ठीक। लेकिन जब वो रैंक लाता है, जैसे कि रैंक लाया, ठीक है, अब लोग इसे पूछेंगे क्या पढ़ा, बोलेगा वही पढ़ा जो तूने पढ़ा। लोग वही एरोगेंट है तो फिर बताएंगे ना, ठीक है। फिर वो दोबारा सोचेंगे क्या पढ़ा तूने, वही बेसिक यार जो तुम लोग नोट्स पढ़ो वही पढ़ेगा। बहुत एरोगेंट है, टॉपर्स कुछ बताएंगे। Then finally one day he will say, अच्छा यार थोड़ा बहुत गाइडेंस पढ़ी, थोड़ा गिराउंड पढ़ा, थोड़ा ऐसे देखा, थोड़ा सच बताया आप इसने। Is that understandable? टॉपर का जो रैंक आता है वो इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं जो उसको एवरेज लेवल तक चले जाते हैं। टॉपर्स उससे ज्यादा उस नॉलेज को अप्लाई करके ज्यादा क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। समझ पाए? जैसे 10 पॉइंट आप सबने पढ़े, पेपर में उस 10 पॉइंट के हिसाब से कुछ लोग 10 ठीक कर पाएंगे, 10 के 10, कुछ लोग 2 सिली मिस्टेक कर देंगे, मतलब पढ़ा हुआ भी गलत करेंगे। होता है, आपने सुना है सिली मिस्टेक, पढ़ा हुआ भी गलत करेंगे। कुछ लोग ना जानते हुए 2 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा ठीक कर लेंगे, एक के हो जाएंगे 12, एक के हो जाएंगे 8। 12 वाला टॉप करेगा, 10 वाले सिलेक्ट होंगे, 8 वाले अगली बार पेपर देंगे। मतलब अगर मैं दोबारा से बताऊं, पढ़ा बेसिक, एक एजुकेटेड गेस और सिली मिस्टेक, इसके बीच में आपकी रैंक है। कई लोग पेपर वाले दिन जो पढ़ के आए होते हैं वो भी गलत कर देते हैं। ये आपने सुना होगा, उसको कहते हैं सिली मिस्टेक, जो मतलब आमतौर पे गलत नहीं होती, एग्जाम में गलत होती, सिली मिस्टेक। ज्यादा सिली मिस्टेक्स होना सिलेक्शन को एवरेज चीजें जो आप पढ़ के सब कुछ कर पाते हैं, सिलेक्शन बहुत बढ़िया पेपर में सोच पाते हैं, टॉप 100, ये क्या है। लेकिन अब इसके पीछे कैच भी, ठीक है, जो लोग शुरू से अच्छी किताबें पढ़ के आ रहे हैं, है ना,
एक बार सोच के देखिए, उसको एक एज है, वो क्या है? उसको ये एज है कि उसने सही किताबें पढ़ी है, ना कि शुरू में गाइड्स को ज्यादा पढ़ा, उसने किताबें पढ़ी तो उसके कॉन्सेप्ट्स डीप हो जाते हैं। अगर आप देखोगे ज्यादातर जो क्लासेस भी करेंगे, टीचर आपको बीच बीच में हाईलाइट करेगा कि ये टेक्स्ट बुक आधारित बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि जो आपका मिसिंग था वो पूरा हो पाए। ठीक है, अगर मेरा जो यहाँ मेरा सबमिशन है कि यदि हमने कॉलेज के समय पे बड़ी बड़ी किताबें कम पढ़ी हैं तो रेगुलर कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही है। कुछ लोग ये गलती भी करते हैं कि वो जब ज्वाइन करने के लिए आते हैं क्लासेस तो वो उसमें आ जाते हैं, तो बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। वो फेयर कॉल नहीं, वो फेयर कॉल नहीं। फेयर कॉल है कि मुझे पता होना चाहिए मेरा वीकनेस क्या है। अगर थ्योरी मेरी वीकनेस है कि मेरा कंटेंट कम है तो रेगुलर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वी आर बेसिंग एवरीथिंग ऑन टेक्स्ट बुक्स, तो वो बात आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा जो मेरा क्वेश्चन का आंसर है, इस समय पे टेक्स्ट बुक्स अब मत उठाइए, अब मत उठाइए, टाइम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर टेक्स्ट बुक उठाने का बहुत स्ट्रॉन्ग मन कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, रुका भी नहीं जा रहा, तो पार्क प्लीज। आप देखोगे अभी जो आरटीआईटी का पैटर्न है उसमें पार्क में से वर्बैटिम बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पार्क वही हम भी आपको देंगे, वही आगे, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग मन कर रहा है तो उसको देखना जरूरी है। और लेकिन अगर पार्क उठाएगी तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ मानेगी कुछ छोड़ना, तो गाइड छोड़ दो प्लीज, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि सब कुछ करें। और पेपर वर्बैटिम ऑल इंडिया का और डीएमपी का टेक्स्ट बुक में से लाइन में से आएगा, उसमें पार्क की खास तौर पर काफी डिटेल आंसर दे दिया, but let us put it to them as well. What do you think? टेक्स्ट बुक बचपन में नहीं पढ़ी तो क्या वो डिसएडवांटेज है? या अगर पहले से if we read the good books, then it definitely has an edge. मुझे I had read Robbins for pathology, so pathology के लिए I didn't feel difficulty in MCQs initially, like during the last 8 months. ज़्यादा जो नहीं पढ़े होते हैं अच्छे लोग, उनमें definitely we feel a little deficient. But then the dance module and all that have all the contents from those important topics, तो cover up हो जाता है. But you will have an edge over others if you have read it during UG. That is true. लेकिन जो हो गया वो हो चुका है, मतलब वर्क ऑन आगे क्या करना है, जो क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, मैंने तो नहीं पढ़ा, क्या मैं नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। लेकिन चेंज करना पड़ेगा कि अब लेकिन मैं जान लगा के पढ़े, अगर तब नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं बना। एक किताब और जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे, जब भी अगर आपको मन करता है पढ़ने का, वो रॉबिन्स है। ज्यादातर टॉपर्स जो मैंने पिछले 5 साल में देखे, हैरिसन भले ही उन्होंने ना की हो, रॉबिन्स जरूर देखी होती है, नहीं रॉबिन्स भी सारी नहीं पढ़ सकते, टाइम पाएंगे। तो अगर मन करेगा कभी टेक्स्ट बुक करने का, उसके 8 चैप्टर जो है ना पहले जनरल पैथोलॉजी वाले, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। ये दो चीजें जो पार्क है और जनरल पैथोलॉजी वाला जो रॉबिन्स है, ये दो मिला के दीज आर एक्चुअली मोर वैल्यूएबल देन योर अमित आशीष का गाइड। ठीक है, अमित आशीष का गाइड करने में 3 महीने लगेगा अगर आप पूरा का पूरा 3 सारा वॉल्यूम्स करते हैं, और ये करने में आपको मैं सोचता हूँ 7-8-10 दिन में पार्क को फटाफट से पढ़ लिए, और 7-8 दिन, 14-15 दिन का बात है, बट इट इज मोर वैल्यूएबल ऑफ द करंट, और आपका सारा जो भी डेफिशिएंसी होगा सब पूरा हो जाएगा। इवन इफ यू नॉट रेड मेडिसिन चलेगा, लेकिन पैथोलॉजी का स्ट्रॉन्ग होल्ड, मैं सोचता हूँ रॉबिन्स कई सारे टॉपर्स जो बिजनेस में बात करता हूँ, वो पैथोलॉजी को अपना सेंटर पॉइंट बताते हैं कि वहां से उनका रैंक आना शुरू हुआ, क्योंकि पैथोलॉजी में अच्छा किया। पैथोलॉजी को जरूर आप सिग्निफिकेंट मानेंगे। दिव्या, you would want to add something? Like we read pathology and PARC during our MBBS time, but last 6 months में we didn't study anything. Last 6 months तो मतलब ये तो मान के चलो 6 months सुनने में बड़े लगते हैं, लेकिन भागते बहुत तेज है। जब पीछे एंट्रेंस आप पढ़ना शुरू करोगे, या अभी आप पढ़ना शुरू किए होंगे हमारे साथ, तो अभी दिन स्लो बीत रहे हैं। बाहर एग्जाम की जैसे नजदीक आता जाएगा, ये डे तेजी से बीतेंगे। रिलेटिविटी है टाइम के अंदर, ये टाइम बहुत तेज भागेगा आखिरी का। तब कुछ भी तब लगेगा क्या मैं बात कर रहा था, क्योंकि हैरिसन और ये सब कैसे देखूंगा, क्लास नोट्स भी देखने के लिए वो टाइम भागेगा। यही एग्जाम है, यही स्किल हमने जाननी है कि अपना काम कम करते जाना है, चाहे अभी कुछ भी एक्स्ट्रा भी करनी कोई बात नहीं, लेकिन उसको कॉपी करते रहेगा। अगर कहीं पे भी आपने कुछ एक्स्ट्रा खोला, मेक श्योर कि वो क्लास नोट्स में एंटर हो जाए, क्योंकि आखिर में उसके अलावा कुछ नहीं देख पाएंगे। If you do this, you will be doing a PG next year 100%. 100% बहुत स्ट्रॉन्ग परसेंटेज है। अगर हम ये फॉलो करते हैं, हम 100% अगले साल पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर बैठे होंगे और जूनियर्स को बता रहे होंगे कैसे पढ़ना है। बहुत मजेदार बात है और बड़ा मजा आता है इसमें।
बताने में. I think he deserves a big hand. Let's give them a big hand. And on behalf of the entire dance team, I wish both of them a very good best of luck in their lives and in their studies and everything put together. They have been very good students. They've been kind, and I think Priyanka will help me, and I'll felicitate them. And on behalf of everybody present in the room, I would like to thank them, क्योंकि बहुत सारे समय मैं देखता हूँ कि जो रैंक लाने के बाद कई लोग शेयरिंग के लिए कुछ ओके भी नहीं होते कि मैं बताऊँ. ज़्यादातर लोग रैंक लाने के बाद बोलते हैं आ गया तो ठीक है बस, और मतलब आ गया बस इतना ही होता है, बस और नहीं बताऊँ. They've been kind enough to tell us their secrets. If you have any doubts, let us have the last question from anybody. If you have a doubt, we'll finish now and we'll start with the ending. Sir, बहुत गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि मेरे चीटी. Any questions? Anybody has a question? बाद में नहीं मौका मिलेगा. वापस बाद में नहीं मिलते थे, भाग जाते थे. Anybody wants to ask anything? कोई भी सीधी डाउट भी हो लेकिन खत्म हो जाए तो अच्छा है. Yes, yes. जो अभी तो पढ़ रही क्लास में ना, दिस इज एक्सटेंसिव स्टडी. जो एग्जाम से आखिरी 20 दिन तक करेगा ना, इंटेंसिव मतलब आइडिया ना. अभी कैसा है कि ना एएनटी वुड गो ऑन टुडे, हियर, कल, नोट्स, पर्सन, नोट, ऐसा लगभग ऐसा चलता रहेगा आराम से. जब एग्जाम आएगा ना तो 6 घंटे में ईयर रोज नोट्स सब दैट इज इंटेंसिव. मतलब यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग विद इट. जो मैं मतलब ऑन अ मोर सीरियस नोट, जो तेरा क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है. आई यू नो डिफाइन इट फर्दर. जब भी हम शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं ना, वी बिकम ग्रीडी. हम ज्यादा चीजें पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, वो फेयर है, वो सही बात है. और सब लोग ऐसे करते हैं. जो रैंकर्स होते हैं या जो अच्छा रैंक आते हैं, वो उस समय कंपाइल भी कर लेते हैं, ताकि आखिर में सिर्फ वो कंपाइलेशन पढ़ते हैं इंटेंसिवली. मतलब इफ यू आस्क एनीबडी, पीजी एंट्रेंस में आखिरी 20 या 25 दिन से ज्यादा टाइम नहीं मिलता रिवाइज करने. 20-25 दिन में रिवाइज करना होता है. तो वही लोग रिवाइज कर पाते हैं और नोट्स बनाए. तो ये बात मैं अभी भी आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि कई सारे लोग हैं, जब मैं क्लास लेता हूँ, कई सारे लोग क्लास में सिर्फ सुनते हैं. मैंने सर ने भी देखा होगा, कई लोग सुनने आते हैं क्लास में, जबकि रैंकर सुनते और लिखते हैं. क्योंकि उन्हें पता है सुनी हुई बात भूल जाऊंगा, लिखी हुई को दोबारा पढ़ लूंगा तो फिर पेपर में याद आ जाए. ताकि इंटेंसिव फेज के लिए हमें तैयारी अभी करें. अभी हम एक्सटेंसिव पढ़ेंगे, आखिर में कुछ और नहीं करेंगे, इंटेंसिवली केवल नोट्स पढ़ेंगे. इंटेंसिव ये मतलब anything else? कोई मतलब रैंक 1 से पूछना नहीं चाहते आप लोग? I think they have done everything. So I think everybody, all the questions have been answered. Ayush, आपका तो क्वेश्चन नहीं कर जाएगा. Thank you very much. Everybody has asked all the questions. We are happy for them and we wish them all the best for their future. And I am sure one of you would be standing in front next year and giving interview to the juniors next year. I am sure rank 1 is possible for everybody. मैं इसलिए भी इनको यहाँ से मिलवाना चाहता था क्योंकि she had ranked 5000 and it became 15-14 in PGI, which is huge. ला सकते हैं, अगर बिलीफ लाएंगे कर सकते हैं. अगर ये सोचोगे कि नहीं सिर्फ जो लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, जो गाइडेंस के नाम वही लाएंगे, ऐसा नहीं. ला सकते हैं, बट यू हैव टू मेक दैट बिलीफ. उसको रोज सोचना है, रोज अपने आप को सोचना है कि अगली बार मैं यहाँ खड़ा हूँगा, आप अगली बार वहाँ खड़े होगे. थैंक यू वेरी मच. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.